Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on the topic political modernization. This lecture is specially designed for the students of MA or those students who are preparing for UGC NET examination or those who are beginners in UPSC exam. So let's begin the topic. Modernization. Again, in the sphere of political system, how modernization is possible in the political arena, what are the factors which are responsible for modernization in the political modernization in the modern society, and how these changes have affected our daily routine life, or our overall perspective regarding the state and governance. We will discuss at length about all these pertinent issues. You know that the modern political system was a great political change that followed after the European Renaissance period and the process of industrialization, which separated the state from the church. Church here means religion, because you know that this process began in Western Europe, and Western Europe, the major religion is Christianity. So that's why we relate it with church. So whenever we quote the term church, here means religion. So here in Europe, it came to the view that religion will not interfere in the functioning of the state or governance. State has its own sphere independent of religion. However, in feudal times, pre-industrial times, it was not so. State was properly guided by the religion, and it was in a monarchical system. It was said that king is the representative of God on earth. So this is how the priestly class was dominant in all state related affairs. But in the Renaissance period, when a question raises that the interference of state should not be there, because people belongs to different religious identities or beliefs or faiths, it has their own private sphere, and this private sphere has no role in the functioning of state. From here the concept emerges, the state, secular state. तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ? सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट मीन्स दैट रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट. बट इट मीन्स द स्टेट और रिलीजन अलग हो गए. लेकिन अगर आप कहते दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं, शोइंग इररेवरेंस टू द रिलीजन. स्टेट जो है इररेवरेंस शो करती है रिलीजन के प्रति. इररेवरेंस का मतलब होता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो उतनी श्रद्धा नहीं दिखाई जाएगी स्टेट द्वारा किसी रिलीजन के लिए कि मेरे लिए ये रिलीजन बड़ा ख़ास है, मैं इसकी गाइडलाइन पे चलूँगा. और स्टेट जो है वो किसी रिलीजन की गाइडलाइन पे नहीं चलेगी, उसके अपने अलग से प्रिंसिपल्स होंगे. वो प्रिंसिपल क्या होंगे? ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, वेलफेयर. ठीक है, ये सब प्रिंसिपल्स उसके एक्शन को गाइड करेंगे, स्टेट के एक्शन को गाइड करेंगे. लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी यही हुआ. मॉडर्न स्टेट इमर्ज हुई आफ्टर ब्रिटिश रूल. जब अंग्रेज़ यहाँ से चले भी गए तो हमने उन्हीं का ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट की, और हमने भी अपनी स्टेट को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में वो ये प्रेम्बल का हिस्सा भी बन गई कि भारत एक सेकुलर स्टेट है. लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है तो थोड़ा यहाँ पे अलग व्यू था. यहाँ पे था इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, क्योंकि इंडिया बहुत सारे रिलीजन्स की धरती है, यहाँ पे डिफरेंट बिलीव्स और फेथ के लोग रहते हैं. इसलिए हम रिलीजन को अवॉइड नहीं कर सकते थे. तो इसलिए हमने कहा कि हम हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देंगे. लेकिन रिलीजन जो होगा अगेन स्टेट की फंक्शनिंग को गवर्न नहीं करेगा.
उसके बाद ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम था रेनेसां पीरियड में, क्योंकि बात की हमने इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, क्योंकि ये नोशन बड़ा पॉपुलर हो गया, साइंस ने बड़ा जोरदार तरीके से इस चीज़ की वकालत की कि ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल। जब हर कोई एक ही तरह से पैदा होता है और एक ही तरह का उसका उसकी बॉडी है, एक ही तरह का उसकी फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं, मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, तो फिर हम इंसान में फ़र्क क्यों करें? इंसान और औरत के बीच में फ़र्क क्यों करें? जातियों के नाम पे फ़र्क क्यों करें? धर्म के नाम के ऊपर फ़र्क क्यों करें? किसी किसी एथनिक डिफरेंस की वजह से हम उसमें डिफरेंस क्यों करें, डिस्क्रिमिनेट क्यों करें किसी को? क्योंकि ये जो एरा था, ये सबको साथ लेकर चलने का एरा था कि हमें सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पे था डेवलपमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। इसलिए उस रेनेसां पीरियड की से जो निकले हुए विचार थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो निकले हुए विचार थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसने दुनिया की हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया। लगभग दुनिया के हर एक संविधान को उसने मतलब एक दिशा दिखाई, डायरेक्शन दिखाई। उसके बाद जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में ये था कि जो शासन होगा वो लोगों का शासन होगा। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स रूल बाय पीपल। अब्राहम लिंकन ने बोला था डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये वो सरकार है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है। ओके, तो अब इसमें जब लोगों के द्वारा है, लोगों की है, लोगों के लिए है, तो इट मीन्स कि लोगों के ही राय पे ये गवर्नमेंट बनेगी। तो इसलिए इलेक्शन उसमें रखी कि हम किस तरह से कानून बनाएंगे। सारे लोग तो कानून बना नहीं सकते, तो कैसे फैसला लेंगे? उन्होंने कहा कि सारे लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो पार्लियामेंट में भेजेंगे, और वो पार्लियामेंटेरियंस क्या होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के कानून बनाएंगे। ठीक है, और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस पे वर्क करेगा? ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करेगा। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली कॉन्शियस होंगे, किसको लेके? अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके। जैसे हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें हमें बोलने की आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी से अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है। जैसे आर्टिकल आप कह सकते हैं 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इर्रिस्पेक्टिव यू बिलोंग टू एनी कास्ट, क्लास, जेंडर। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कहता है इट इज़ ए राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर नहीं कर सकते, वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का अधिकार है एक इज्जत के साथ। इसी के अंडर हमने देखा राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल 21 ने, जिसमें हम कहते हैं कि सबको पढ़ने का अधिकार है। इसलिए भारत का संविधान 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं कि जो लोग प्राइमरी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, भारत का संविधान प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू प्रोफेस हिज ओन रिलीजन, आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। इसी तरह से राइट टू वो है कल्चरल आइडेंटिटी है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बना सकते हैं।
तो इस तरह के हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फिर कुछ DPSPs हैं, डायरेक्टोरेट स्टेट प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो डायरेक्ट स्टेट को गाइड करते हैं कि स्टेट को क्या कानून बनाने चाहिए, क्या नहीं बनाने चाहिए, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, स्टेट्स को लेके हैं, सेंटर को लेके हैं, फेडरल सिस्टम को लेके हैं। सो इट मीन्स कि हर चीज़ किस पे चलेगी, कानून पे चलेगी। किसका शासन होगा, कानून का शासन होगा। पुरानी व्यवस्थाओं में हमने देखा मोनार्किकल सिस्टम में वहाँ एक व्यक्ति शासन करता था, एक आदमी शासन करता था और उसी की चलती थी, और वो जो बोलता था वही कानून होता था। अगर कोई उसकी बात को क्वेश्चन करता तो वो एक तरह की वायलेशन मानी जाती और एक पनिशेबल ऑफेंस होता। किसी भी आदमी को राजा की बात काटने का अधिकार नहीं था। राजा जो भी कर रहा है सही कर रहा है और आपने उसको मानना है। मोनार्किकल सिस्टम में मोनार्क की चलती है, एक आदमी की चलती है, रूल ऑफ वन मैन। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में रूल ऑफ फ्यू पर्सन्स, ठीक है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में भी अगेन यहाँ पे टोटल पावर कुछ लोगों के हाथ में है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी मॉडर्न एरा में भी, जैसे हिटलर की गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट थी, जिसने रेशियल बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस किए और बहुत बड़ा ह्यूमन जेनोसाइड किया। ज्यूस मैसेकर लार्ज स्केल पे हुआ और उसने अपनी रेशियल सुपीरियॉरिटी के बेस के ऊपर एक नेशन बनाने की कोशिश की। उसका जो फनेटिक जो आइडियाज़ थे, जिसकी वजह से लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया, पूरी रेस को अविक्ट करने की कोशिश की गई। हम ऐसी सरकारें नहीं चाहते, आज के लोग ऐसी सरकारें नहीं चाहते। स्टालिन के टाइम में भी बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ, हालांकि वो व्यवस्था सोशलिज्म पे टिकी हुई थी, पर फिर भी स्टालिन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है अपने अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी की वजह से। इसी की तरह इटली का मुसोलिनी था, मुसोलिनी ने भी ऐसे किया, जो फासिस्ट फोर्सेस का मेन क्या था, लीडर था। इसलिए फासिज्म और नाजिज्म एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए क्या बन गए, खतरा बन गए, और लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमें भी क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। और इस वजह से एक समय के बाद इटली में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। मुसोलिनी के मरने के बाद, हिटलर के जाने के बाद वहाँ पे जर्मनी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। हिंदुस्तान में तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया कि पावर सेंटर और सिर्फ स्टेट के हाथ में ही नहीं रहनी चाहिए, या कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। जो नीचे तबके का आदमी है, जो गांव में रहता है, उसको भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आपने इन्वॉल्व करना है। इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, जिसमें पंचायतों को पावर दी गई कि वो अपने सरपंच चुनेंगे, अपनी ग्राम सभा के थ्रू इलेक्ट करेंगे अपनी पंचायत को, पंचस को, और वो जो पंच सरपंच होंगे वो अपने गांव से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। वो बताएंगे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, एसी रूम में बैठ के आदमी गांव के बारे में पॉलिसी बनाता होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है कि गांव में क्या होता है, गांव में लोगों की क्या परेशानियां हैं। एक आदमी की परवरिश शहर में हुई और वो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके ब्यूरो ऑफिसर बन गया, लेकिन उसको क्या, उसकी ड्यूटी उस एरिया में लगी जहाँ तक ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और उसको गांव से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, तो उसे समझ नहीं होगी गांव की।
वो नहीं जानता, क्योंकि हर एक एरिया का जो गांव है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी टोपोग्राफी है, अपने सोशल इश्यूज हैं, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं। जैसे एक गांव प्लेन में है, प्लेन एरिया में, उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक गांव पहाड़ों पे है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एक गांव डेजर्ट एरिया में है, उसकी अलग प्रॉब्लम है। एक गांव बॉर्डर एरिया में है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। कोई गांव ज़्यादा अनपढ़ता का शिकार है, कोई 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 बेरोज़गारी का शिकार है, कोई जो सोशल इश्यूज़ हैं जैसे अनटचेबिलिटी उसका शिकार है, कोई सुपरस्टिशन का शिकार है, कोई वीमेन रिलेटेड क्राइम्स का विक्टिम है। तो अलग अलग इश्यूज़ हैं, इसलिए उन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जाए। तो इसीलिए हमने बोला, भारत का संविधान बोलता है कि हम वहाँ के लोगों को ही अधिकार देंगे कि वो अपनी बात रखें, और उन्हीं की बातों के हिसाब से भारत का संविधान या भारत की जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाए और एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड लेवल के ऊपर। इसलिए आज ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन वाला ये जो मॉडल है, ये बड़ा पॉपुलर मॉडल है और बड़ा ही इफ़ेक्टिव मॉडल माना जाता है, जिसने हर एक आदमी को एक एहसास दिला दिया कि हम भी इसी देश के वासी हैं और हमारी भी जो बात है वो इम्पोर्टेंस रखती है, हमारी बात की अहमियत है। ठीक है। इसलिए एक हेल्थी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए लोगों का लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी लोगों का विश्वास बना रहता है सरकार के ऊपर और एक स्टेबल गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। अगर लोगों को अपनी सरकारों के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो उनकी लॉयल्टी भी नहीं होगी, क्योंकि देश किससे बनता है? देश लोगों से बनता है। देश को सिर्फ आप ज़मीन नहीं कह सकते। देश की डेफिनेशन में क्या आता है? एक स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है? एक स्टेट की डेफिनेशन में आती है पॉपुलेशन, टेरिटरी और लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। अगर हम लोगों को निकाल देंगे तो बात स्टेट नहीं बनेगी। और जब स्टेट नेशन कैसे बनती है? स्टेट नेशन तब बनती है जब लोगों को उससे प्यार होता है, उसके प्रति लॉयल्टी होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, तो वो एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, नेशनल आइडेंटिटी डेवलप होती है, और वही नेशनल आइडेंटिटी उनको उनके अंदर जज्बा पैदा करती है देशभक्ति का, कि वो अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। अगर हम भारत का पुराना इतिहास देखें तो ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ देश था। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो वो रिवोल्ट अंग्रेज़ों ने कुचल दिया, सप्रेस कर दिया। क्यों कर पाए वो ऐसा? क्योंकि हमारे ही कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि लोग जब लड़ रहे थे तो वो एक देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। उनका एक कॉमन एजेंडा ही नहीं था। किसान अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, औरतें अपने मकसद के लिए फाइट कर रही थी, ज़मींदार अपने अलग मकसद से अंग्रेज़ों के कुछ खिलाफ थे और कुछ अंग्रेज़ों के साथ थे, कुछ जो प्रिंस थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि उनकी किंगडम्स अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, और कुछ अंग्रेज़ों के साथ थे क्योंकि अंग्रेज़ उनकी मतलब उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस देते थे। ठीक है। तो इट मीन्स कि सबके अपने अपने कॉज थे, लेकिन यहाँ पे देश कहीं नहीं था। ये कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हम एक देश के वासी हैं, इसलिए हम हार गए। 1857 का रिवोल्ट एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी का मूवमेंट चलाया तो लोगों को एक सूत्र में बांधा, एक आइडेंटिटी पैदा की, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा की। ठीक है, कि हम इस देश के वासी हैं और हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन डिस्पाइट वी हैव मैनी
religious, ethnic, racial, cultural, political differences. Even then, we are one. ठीक है, तो ये जो वननेस की फीलिंग है, यही भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत बहुत सारे राज्यों का क्या है, यूनियन, एक गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते में बहुत अलग अलग तरह के फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू है, अपना रंग है। और इस खुशबू को, इस रंग को, इस खूबसूरती को कैसे बचाया जा सकता है, अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्न करें, अगर हम सबको बराबर का मौका दें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ और भी फोर्सेस हैं जो इसको क्या करती हैं, मजबूती देती हैं, उसको यूनाइट करती हैं, पॉलिटिकली एक करती हैं, या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, एड्रेस करती हैं। वो है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मीन्स जो अब लोग अपने लेवल के ऊपर एक नॉन गवर्नमेंट जिसे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एनजीओज का नाम जिसे हम देते हैं, कुछ सिविल सर्वेंट्स हो गए, कुछ एजुकेटेड लोग हो गए, रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी के लोग हो गए, जो समाज में वेलफेयर करना चाहते हैं बिना किसी सेल्फ मोटिव्स के, सेल्फलेसली। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हैं, टीचर्स हैं, कोई और लोग हैं, ठीक। जब वो क्या करते हैं, ये एक वॉच डॉग का काम करते हैं कि क्या हमारे देश के लोगों के साथ न्याय हो रहा है, क्या जो निचले तबके का आदमी है उसके साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, ठीक। और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा आज के दौर में मास मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है। लोग अपनी बात डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सरकार तक पहुंचाते हैं। और जो बिल्कुल जो सोसाइटीज़ बिल्कुल पिछड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं, उनकी आवाज़ सेंटर तक पहुंचाते हैं। वो मार्जिनलाइज सेक्शंस जिनके उनके लिए वो माउथ पीस बनते हैं और स्टेट को ये एहसास कराते हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दिस इज हाउ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी टेक प्लेस। अगर ये नहीं होगा तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ये जो डिफरेंट एनजीओज हैं, ये भारत में अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हैं कुछ एनजीओज जो देखती हैं कि बच्चों की एजुकेशन, उनको किस तरह की एजुकेशन दी जाए। जैसे जो गरीब बच्चे हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, अनाथ हो गए हैं, उनकी वेलफेयर कैसे की जाए, उनको एजुकेट कैसे किया जाए। जहाँ जो बूढ़े लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए। जो औरतें हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं जो गांव में रहती हैं, उनके लिए स्कूल्स कैसे खोले जाएं, उनको एजुकेशन कैसे दी जाए। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पता है हेल्थ कैंप्स लगाती हैं, फ्री इलाज करते हैं, आँखों का इलाज करते हैं या और बाकी सारे मेडिकल चेकअप्स करते हैं। और जो लोग महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री इलाज दिया जाता है।
इसी तरह से इन्वायरमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मूवमेंट्स चले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, जैसे चिपको मूवमेंट है, अपीको मूवमेंट है, जिसमें बहुत सारे एमिनेंट जो इन्वायरमेंटलिस्ट सामने हैं, जैसे वंदना शिवा, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने बड़ा काम किया इस फील्ड में, ठीक है। लोगों को वहाँ की जो जो बिल्कुल ही वो लो एरियाज़ हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइबल बेल्ट्स जो हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, उनके इश्यूज लोगों तक पहुंचाए कि जंगल कैसे उनके घर हैं, उनकी हैबिटेट हैं। हम लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन से या ब्रिज बना के उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं और उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने घरों से। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लार्ज स्केल पे जो पेड़ों की कटिंग हो रही है उससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कहीं पे पेड़ काटने भी पड़े तो उसकी बदले में हमें कहीं और पेड़ लगाने चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, हमें अपने नेचुरल सोर्सेज को बचाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन ना फैले, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, चाहे नॉइस पोल्यूशन है। इस तरह के बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं सरकार को बनाने के लिए गाइडलाइंस दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ इसी देश में हो रहा है जहाँ पे अलग अलग सेक्टर में काम किया जा रहा है और एक वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी है वो हमें देखने को मिलती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वाई इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया इज़ ए नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इट मीन्स कि 140 करोड़ लोगों को के ऊपर क्या चला रहा है, एक शासन चल रहा है जो लोगों का शासन है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने भारत में मॉडर्नाइजेशन होते देखी है। एक वो दौर था जब हमारे ऊपर राजा शासन करते थे, सुल्तान शासन करते थे, बादशाह शासन करते थे, या कुछ ज़मींदार हमारे ऊपर हुक्म चलाते थे, हमारे भाग्य का फैसला करते थे। लेकिन आज वो दौर है कि हम अपने भाग्य के आप विधाता हैं, हम अपना भाग्य आप लिख सकते हैं। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक्सेल कर सकते हो, आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ को पूरा करना है और आप उस ओहदे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक, इंडिया इज़ ए सेकुलर नेशन, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक नेशन where all peoples have equal say in the decision making of the functioning of the government। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी लेक्चर सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।